Hello and welcome everyone. Coming to the last video of the particular playlist of numerical part of class 9th, and that is of chapter sound. And as usual, we will try to complete this particular video also in one shot. Okay, before starting the numerical parts, as you know, we will discuss some important formulas, its definition, some values, data, related questions, and etc. But before that, the concept of this particular chapter, the theory, conceptual part, and you can say each and everything about the particular chapter sound that you can see in the video. And if you already watched, then you can keep watching this video because it will be useful for you only. Okay, now start today's numerical session with the formulas. As you can see, first formula is of frequency. For example, if I am walking from here and there, if I am coming into the class regularly, then you will see that you will say that your frequency of coming to class is a good amount of frequency, correct? But in actual, how we define a frequency numerically? For example, if you see a pendulum or something which like oscillating, okay, that is called as, if you start from here, it will go somewhere here, then back at its position. That is called as one oscillation. Okay. If there are oscillations, you will define frequency as number of oscillations per second. कि भाई एक सेकंड में कितने oscillation complete किए, एक किए, दो किए, that is called as frequency. Okay, that is time period, and this particular symbol nu is of frequency. Okay, SI unit is based on the name of the scientist, Hertz. H capital, Z small, Hertz. Okay. Also, in some textbooks, you might have seen that frequency can also be defined as number of cycles per second. कि भाई ये एक cycle complete हुई, फिर वही cycle repeat हो रही है. That's what happens in the oscillation. एक cycle complete हुई, फिर दूसरी, तीसरी, तो cycle कहो या oscillation कहो, loop है, circular loop, continuous, repeat होता जा रहा है. तो number of cycles per second also you can define it as frequency. Unit याद रखना है hertz. Coming to the next important formula, that will be of wavelength. Sound is a wave. हमने वेव भी बनाई थी, पता है ना कौन सी वेव है, लॉन्जिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज ऑफ वेवलेंथ. पहले तो सिंपल देख लो, वेवलेंथ का उल्टा वाई जैसा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लैम्बडा. ओके, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रेस्ट और टू consecutive ट्रफ. एक वेव है इस तरह से. अब ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट को कहा जाता है क्रेस्ट. तो टू कॉन्जिक्यूटिव, इसके बाद कौन सा है, ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दैट्स हाउ यू डिफाइन वेवलेंथ और लैम्बडा. या फिर इन दोनों के बीच में ये जो नीचे वाले दो बॉटम पॉइंट्स है, इसको कहा जाता है ट्रफ. डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ. अब ये दोनों सेम ही आएगा, तो आप इसको मेजर करो या फिर इसको मेजर करो, आपको क्या मिलेगा, वेवलेंथ लैम्बडा. ओके, कंसेप्ट याद रखो, डेफिनेशन अपने आप याद रह जाएगी. कमिंग टू द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू विल यूज इन हायर ग्रेड्स आल्सो. सो द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्बडा, न्यू एंड एस इज एज शोन. एस इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा. बोलना भी ऐसे, याद भी ऐसे ही रखना है. एस इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा. एस स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये वेवलेंथ. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ी होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, अब वेवलेंथ का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट मीटर, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज. तो वेवलेंथ एक टाइप का डिस्टेंस ही है, तभी उसका यूनिट मीटर है. जो भी डिस्टेंस आएगा वो मीटर में आएगा. अब देखो, डिस्टेंस की जगह अगर मैं लैम्बडा लिख दूं, ओके, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम था. अब एक टाइप का डिस्टेंस है, उसे आप लैम्बडा कह सकते हो, तो लैम्बडा लिख दिया मैंने डी की जगह. अब 1/t क्या है, अगर ये टाइम पीरियड है t, तो 1/t will be frequency. तो 1/t मतलब frequency will be u. That's how you will come to the formula of s is equals to nu lambda. Okay, 1/t की जगह मैंने सिर्फ nu रखा है और डिस्टेंस की जगह लैम्बडा रखी है, क्योंकि लैम्बडा एक टाइप का डिस्टेंस ही है. और s तो पता ही है स्पीड. तो स्पीड ऑफ साउंड, या फिर आगे जाके पढ़ोगे स्पीड ऑफ लाइट को आप c कहोगे. That also you can use. S is equals to frequency into wavelength. Okay, that we will directly use in the numericals. अब पता है हमें कि भाई सारी फ्रीक्वेंसी हम
सेंस नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते। एक हमारी रेंज है ऑडिबल कि भाई इतने से इतनी फ्रीक्वेंसी आप सुन पाओगे, उससे कम भी नहीं सुन पाओगे, उससे ज्यादा भी नहीं सुन पाओगे। अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ओके, पढ़ा होगा आपने, वो वीडियो में भी देखा होगा, ना देखा हो तो देख लेना। चलो, क्या है फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज इन ह्यूमंस? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज को, या फिर 20 किलो हर्ट्ज को, इतनी रेंज में जो फ्रीक्वेंसी होगी वहीं आप सुन पाओगे। उससे कम वाली इनऑडिबल, उससे ज्यादा भी नहीं सुन पाओगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इको रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं कि भाई जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज मुझे वापस भी सुनाई देती है कभी कभी। यहाँ पे भी आपको कभी कभी अगर वॉइस क्वालिटी ठीक ना हो तो इको आता है कि भाई एक ही आवाज दो बार सुनाई दे थिएटर्स पे, बड़े हॉल्स में। ओके, तो उसमें से क्या क्वेश्चन बनता है कि आपको वही स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का यूज करना होता है। ठीक है, आपको टाइम दे दिया जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड दे दिया जाएगा, लेकिन अब समझो आप, साउंड यहाँ से कहीं जाएगा, फिर टकरा के वापस उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे 5 मीटर गया साउंड, फिर टकरा के 5 मीटर वापस आया, तभी आपको वापस सुनाई दिया। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन और इको। समझ आ रहा है? तो अब ये डिस्टेंस को मैं डी लू या फिर डी प्लस डी 2D लू, टोटल कितना साउंड ने ट्रेवल किया? 2D। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, डी की जगह टोटल डिस्टेंस 2D ही ले लेना है। अगर टोटल डिस्टेंस 2D है, स्पीड तो चलो स्पीड ऑफ साउंड है, टी क्या मिलेगा? टोटल टाइम। ओके, वहां पे 2T नहीं लिखना है वरना ऊपर नीचे वापस 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस फॉर्मूला यू विल यूज, यही मॉडिफिकेशन कर करके आप यूज कर रहे हो। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, 2-3 कंसेप्ट में न्यूमेरिकल बनेंगे। बट अच्छा, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि स्टार्टिंग से हमने जितने भी चैप्टर किए तो न्यूमेरिकल्स जो है वो धीरे धीरे कम होते गए। अब इस चैप्टर में आप जो पहले चैप्टर पढ़ाया था उसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। देखो, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्या पता है हमें कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन हो, व्हाटएवर इट इज, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है you can use these 3 equations of motion. V is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, 2as is equals to v square minus u square. यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस है, s स्पीड नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने s को स्पीड लिया था तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहले से फॉर्मूला है। u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम इंटरवल, a एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और v फाइनल वेलोसिटी। यहाँ में से कोई भी एक वेलोसिटी आपको दी जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड कह रहे हो या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दिया जाएगा। ओके, दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट। या s की जगह हाइट भी हो सकती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है इन एनी ऑफ द चैप्टर, तो ध्यान रखना है आपको। बस इतनी फॉर्मूलाज काफी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी is given as 100 hertz and the time is 1 minute, which is 60 seconds. So let's set time as capital T. Now अगर ध्यान से देखो आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि when 100 hertz फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? The number of oscillations per second। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, that is called as frequency। एक सेकेंड में मतलब टाइम में ऑसिलेशन, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? 100। बेसिकली 100 हर्ट्ज वाज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में 100 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो एक मिनट में मतलब दोनों को एक यूनिट ही रखना पड़ेगा ना, मिनट को कर दो सेकेंड में कन्वर्ट। एक सेकेंड में 100 ऑसिलेशन, तो 60 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन? n कह देते हैं उसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? n इज इक्वल्स टू 100 into 60। The number of oscillations in 1 minute will be 6000। As easy as that। Number of oscillations ही फाइंड करने थे, ये तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक सेकेंड में 100 oscillations कंप्लीट हो रहे हैं, तो 60 सेकेंड में कितने होंगे? 60 into 100, 6000 oscillations। ये क्वेश्चन देखो, दैट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक पर्टिकुलर हाइट से आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया। क्या किया है? ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? तो पानी है ना नीचे, इसकी हाइट दी गई है 500 मीटर। ओके, अब ये जो स्टोन है
पहले यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फिर वो क्या होगा, स्प्लैश, और फिर उस स्प्लैश की आवाज यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी। तो हमें फाइंड करना है कि कब आवाज पहुंचेगी। तो पहले तो स्टोन को आप ड्रॉप करोगे तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तब से टाइमर स्टार्ट कर देना है। तो ऊपर से नीचे पहुंचने में स्टोन को कुछ टाइम लगेगा ना, वो टाइम प्लस जब स्प्लैश होगा, जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड या फिर वाटर सरफेस को, तब आवाज नीचे से ऊपर पहुंचेगी ना। तो टोटल टाइम क्या लेना है हमें, ऊपर से नीचे जो स्टोन पहुंचा उसका टाइम प्लस स्प्लैश का आवाज नीचे से ऊपर पहुंचेगा वो। तो T1 प्लस T2। T1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो स्टोन को लगेगा, और स्प्लैश को यहाँ से यहाँ तक का टाइम बना देते हैं T2। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है, और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट। वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सी लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, s मतलब हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, हाइट का 500। इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से देखो यहाँ पे वर्ड किया है यूज ड्रॉप। कोई भी चीज को आप ड्रॉप कर रहे हो या फिर रिलीज कर रहे हो, फ्री फॉल कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो रहा है, इस तरह के जो वर्ड है ना, वहां पे वेलोसिटी क्या लेनी है आपको, 0। ओके, यहाँ तो स्टार्टिंग है या फिर फाइनल वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ड्रॉप वर्ड यूज किया है। अगर ड्रॉप वर्ड यूज करे व्हीकल के केस में या फिर कोई व्हीकल के केस में, इन शॉर्ट अगर व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रिलीज, फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, फ्रॉम वॉज इमोबाइल, इस तरह के जो वर्ड है यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी गई है। वेलोसिटी क्या है, 0। तो ध्यान रखना है यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0। तो 0 इंटू 2 विल बी 0, t विल बी 0 हाफ। एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया गया है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखा आपने उस चैप्टर में हम जगह 9.8 रहे थे, मोर अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर दिया 10। ठीक है, चलो अपना कैलकुलेशन इजी हो रहा है, और टी हमें फाइंड करना है, इसे T1 नाम देते हैं। ठीक है, चलो 2 5 तो 500, यहाँ से 2 5 कैंसिल, 5 इंटू T1 स्क्वायर। 500 पर 5 करोगे तो 100 आएगा, ये मिला हमें T1 स्क्वायर। तो T1 क्या होगा, दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, या फिर इसको 10 क्रॉस 10, 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, दैट्स व्हाई T1 विल बी 10 सेकंड्स। ओके, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। पत्थर को नीचे तक पहुंचने में 10 सेकंड। आवाज को नीचे से ऊपर पहुंचने में क्या लगेगा टाइम, T2। चलो वो भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड है, डिस्टेंस है, हाइट, तो टाइम मिल जाएगा। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। फाइंड करना है टाइम, टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, T2 नाम देता हूं मैं। तो उस तरफ क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डायरेक्ट वैल्यू रखो। डिस्टेंस क्या है, हाइट जो है वही डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हाइट ही तो हुई 500 अपॉन स्पीड, नीचे जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या दी गई है, 340 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से साउंड नीचे से ऊपर जा रहा है। बस व्हेन यू विल कैंसिल इट, यू विल गेट आंसर इन 1.47 सेकेंड्स। T1 मिल गया, T2 मिल गया, दोनों की वैल्यू रखो तो टोटल टाइम मिल जाएगा 10 सेकेंड्स प्लस 1.47 सेकेंड्स, टोटल टाइम मिलेगा 11.47 सेकेंड्स। तो अगर कोई पत्थर है तो आप फ्री फॉल कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो 500 मीटर हाइट से, अगर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन 10 है, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है, तो ऊपर से नीचे जब वो पहुंचेगा और जब उसकी आवाज नीचे से ऊपर पहुंचेगी तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 11 सेकेंड, 11.47 सेकेंड, शुद्ध हिंदी में कहे तो। As in the question, it is given that the speed is 339 मीटर पर सेकेंड। देखो वेवलेंथ क्या दी है, 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर थोड़ी ऐसा यूनिट था, ऐसा यूनिट क्या था, मीटर। कैसे जाओगे सेंटीमीटर से मीटर में, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो रिलेशन क्या हुआ 100 का, कंफ्यूजन होता है कभी कभी बच्चों को, दैट आई हैव सीन कि 100 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हो आप, हमेशा जो भी रिलेशन है उससे डिवाइड करना है। रिलेशन क्या है, 100।
तो 100 से डिवाइड कर दो तो सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे आप, ठीक है। 15/100। और ये भी कहा था मैंने आपको कि जब भी आप कन्वर्ट करो तो रेशियो है तो रेशियो को एज इट इज रखो, आगे कभी कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाए, ठीक है। डेसिमल में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड क्या करना है, ये वी नहीं है, दैट इज न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। स्पीड तो दी गई है, ठीक है, जिसको हम एस नाम दे रहे थे, दैट इज गिवन। अब ये जो भी फ्रीक्वेंसी हो, क्या वो ऑडिबल होगी कि नहीं, क्या थी ऑडिबल की रेंज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 और 20,000 के बीच में हो तो यस इट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, और उससे ज्यादा या कम हो तो नॉट ऑडिबल। चलो कैसे सोल्व करेंगे, जो स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला कही थी मैंने, स्पीड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ओके। अब जो चीज गिवन है वैल्यू रख दो। स्पीड दी गई है 339, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वेवलेंथ दी गई है 15/100। तो सब्जेक्ट बनाओगे तो 339 इंटू 100 अपॉन 50, 3 सेकेंड्स होगा, 3 5 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 5 सेकेंड्स करो, 5 2 जा 10 5 20 जा 100, क्या मिलेगी 113 इंटू 20, 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2260, क्या मिलेगा यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं भूलना है, हर्ट्स। क्या ये 20 और 20,000 के बीच में है, यस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइम दिया गया है 3 सेकेंड, स्पीड दी गई है 342 मीटर पर सेकेंड, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने आपको कहा था कि जो भी इको रिलेटेड क्वेश्चन हो ना, वहां पे आपको डिस्टेंस को क्या लेना है, 2t। मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है, ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में तो हम कुछ सिंगल डबल की बात करते नहीं है, लेकिन जो स्पीड ऑफ साउंड है यहाँ से वहां जा रहा है साउंड वेव, और वहां से यहाँ पे वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस जो भी ट्रैवल कर रहा है उसका डबल ट्रैवल करेगा, तब आपको वापस सुनाई देगा। और टाइम भी यहाँ से वहां तक जो लग रहा है प्लस वहां से यहाँ तक जो लग रहा है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को हमने टी नाम दिया है, ना कि 2t, ओके। टोटल टाइम टी दिया है, लेकिन अगर डिस्टेंस डी है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डी प्लस डी 2d। दोनों को 2 लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी टू टेक डिस्टेंस एज 2d। अब वापस वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर डिस्टेंस को 2d ले लो आप, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मिलेगा ना हमें, तो 2d क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है देखो 342, टाइम क्या है 3, 3 2 जा 6 4 3 जा 12 3 3 जा 9 और प्लस 1, तो 2d मिलेगा आपको 1026, d मिलेगा 1026/2, दैट विल 2 5 जा 2 1 जा 2 3 जा, ये क्या मिलेगा डिस्टेंस 513, ऐसा यूनिट है वेवलेंथ का या फिर डिस्टेंस का मीटर। तो साउंड को यहां से वहां तक, जहां से एक पर्टिकुलर सरफेस पे पहुंच के रिफ्लेक्ट होने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 513 मीटर, ओके। इतने मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना मीटर वो जाएगा साउंड, फिर उतना ही मीटर वापस आएगा, तो 2 बार कैलकुलेट क्यों करें। सिंगल टाइम में कितना लग रहा है 513, और टोटल कितना लगेगा 2d 1026 मीटर, ओके। जो भी फाइंड करने को पूछा वो हम फाइंड कर सकते हैं, 513 मीटर। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, अगेन देखो स्पीड क्या दी गई है, अच्छा वापस v ले लिया मैंने, चलो ऐसे ले लेते हैं। स्पीड इज 346 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड करना है, सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ डेटा चेंज किया है। तो लॉजिक आपको कहा था कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2d, d प्लस d, क्योंकि साउंड टकरा के वापस उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, अच्छा डिनोमिनेटर में जाने देते हैं 2 को, इजी रहे। स्पीड है 346, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 3 जा 6, ओके। 173 होता है, 346 से आता है, तो 173 1 जा 173, तो हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा
एक डिस्टेंस यहाँ से वहां तक पहुंचने में, वहां से यहाँ तक पहुंचने में 173 मीटर। सिमिलर क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, इको रिलेटेड या फिर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ फाइंड करनी हो, या फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड के बीच में कुछ इंटर रिलेशन या फिर रिलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होगा, इसका डबल कर दो, 173 टू जा लिखा ही है ना हमने 346, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 346 मीटर। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द न्यूमेरिकल्स। ज्यादा कुछ तो है नहीं, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी कंसेप्ट है, समझ आ गए होंगे आपको। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, कहना ना पड़े मुझे बार बार। अब क्लास 9 तो हमने खत्म कर दिया है। नाउ along with all the interesting videos, we will continue with the one shot of class 10th. So stay tuned. Goodbye. Physics works.